Today we are going to discuss about environmental factors. In last two lectures we discussed about, first of all, what is communication, meaning what exactly is the nature of communication. हमने ये पढ़ा था communication किसे कहते हैं और हमने उसमें पढ़ा था कि it is a two-way process. Then in the second lecture we discussed what are the very basic principles of communication, and they were discussed in that last lecture. Today we are going to discuss about some other factors which are not directly related to the communication in terms of content. They are actually outside factors which influence communication. आज हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में कि जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं और जो कम्युनिकेशन में असरअंदाज होते हैं. ओके. Communication can be influenced by environmental factors that have nothing to do with the content of the message. ये वो वाले हैं कि जो content of the message से इनका ताल्लुक नहीं है, ये आउटसाइडर होते हैं. For example, the place where you are communicating, the nature of the room, how warm it is, smoke, comfort of the chair, etc. So, nature of the room also influences communication. For example, your audience are not comfortable with the environment of room. It's July, for example, and very hot weather, and your audience are sitting under the sun in open air. So obviously they won't feel comfortable. They won't feel focused. They won't be able to focus their attention to communication. Why? Because the sunshine, the hot weather, it will not let them focus upon the communication. तो अब अगर बैठने की जगह दुरुस्त नहीं है तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी. आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एरिया. आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है बाहर से मुदाखलत, तवज्जो जो है वो बढ़ जाती. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड नाउ देयर आर a lot of students walking in the corridor next to the room. Room के साथ जो corridor है उससे जो है ना वो students आ रहे जा रहे हैं. Some of them are singing, some other abusing each other, some other cracking jokes, making fun of each other. So although you are inside the classroom, your teacher is working very hard. He is trying to communicate some key he is trying to communicate to you something very special, and he is full of energy. He is using visual aids and all the resources are available, and he is using best use of them. But in spite of all that energy from teacher's side, if there is distraction outside of the room, if there is noise outside of the room, students, audience, they won't be able to focus upon the communication. So these outside distractions, they also negatively affect communication. अगर कमरे के बाहर जो है वो शोर हो रहा है तो अब जो है वो अगरचे अंदर उस्ताद जितना ज्यादा कोशिश कर ले अच्छे तरीके से पढ़ाने की, he won't be able to teach. Why? Because there is lot of noise outside. There is lot of distraction outside. The reputation, credibility of the speaker or writer, it also matters a lot. जो बोलने वाला है, जो communicate करने वाला है, जो speaker है, जो बोल कर communicate कर रहा है, या कोई writer है जो लिख कर आपसे communicate कर रहा है, तो उसकी जो reputation है, उसकी जो credibility है, that also matters a lot. Because if you don't believe in speaker, if you don't have faith in writer,
So the communication is going to be useless in this way that because you don't believe in the writer, you won't believe in his message as well. तो क्योंकि जो स्पीकर है या राइटर है आप उसमें बिलीव नहीं करते, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं है, तो फिर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. बिकॉज यू ओनली लिसन टू दोज पीपल, you only believe those people who have good reputation, who have good credibility. Once a person loses his credibility, loses his reputation, so audience, they stop believing in him and they don't take him serious. The other environmental factor which influences the communication is listeners' education, knowledge of the topic, etc. Listeners' education, जो सुनने वाले हैं उनकी जो एजुकेशन है वो भी मैटर करती है. उनकी जो टॉपिक के मुतालिक ऑलरेडी जो नॉलेज है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर मुझे कहा जाए कि मैं आपको आप जैसे BScs कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का मुझे कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप अपने जहन में लें. अब मैं कंप्यूटर साइंस का आदमी ही नहीं हूं. मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ड के बारे में बता सकता हूं, MS वर्ड कैसे यूज होता है, एक्सेल कैसे यूज होता है, शट डाउन कैसे करते हैं कंप्यूटर को, मैं ये चीजें बता सकता हूं. अच्छा, अब अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपकी जो नॉलेज है वो कंप्यूटर के बारे में ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा है. तो अब क्या होगा कि यू पीपल वॉन्ट बिलीव मी, यू पीपल वॉन्ट ट्रस्ट मी, बिकॉज यू नो दैट यू पीपल नो अबाउट कंप्यूटर साइंसेस मोर देन मी. योर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर साइंसेस इज more than me. So in this case, because you are a listener and your knowledge about the topic, your education about the topic is more than me, so most probably you would reject me, you would reject my presentation, you would reject my communication. So you need to keep the listener's education when you are communicating. So you need to keep listeners' education in your mind as well. And it is also possible कि जो listener है उसको education तो है लेकिन उसकी education limited है, उसकी knowledge जो है वो topic के मुतालिक limited है. और अब आप अगर उसकी knowledge से एक step आगे जाकर उसको कुछ चीज communicate करते हैं तो अब जो है communication effective होगी, because the listeners, the audience, they won't lose interest, but because they are going to learn something new, so this thing will maintain their interest. The language, page layout, design of the message. हाँ, जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पेज का लेआउट भी देखा जाता है. जब आप विजुअल एड्स के थ्रू लाइक पावर पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं तो फिर डिजाइन ऑफ द मैसेज भी देखा जाता है. पावर पॉइंट्स कैसी हैं, कहीं ऐसी तो नहीं है कि इतनी फैंसी बना दी हैं कि जो ऑडियंस हैं वो पावर पॉइंट के डिजाइन पर ही फंस जाएं, उसी पे गौर करते रहें और मैसेज उन तक न पहुंच सके. द लैंग्वेज, जब कम्युनिकेशन स्पीकिंग के थ्रू हो रही है तो फिर लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैंग्वेज बहुत घटिया और बाजारी है. तो इसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो सकती है. तो दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच वी आर सपोज टू कीप इन आवर माइंड. चाइनीज विस्पर, विस्पर कहते हैं सरगोशी को. Communication is complex when listening to or reading someone else's message.
जब हम किसी और का मैसेज सुन रहे होते हैं तो उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि एक वो है कि जो दूसरा कह रहा है और एक वो है जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहने वाला कुछ और कहता है, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से ही कोई बात होती है, तो हम उस बात के तनाजुर में उसकी बात को समझते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ का कुछ समझ जाते हैं। अब देखें, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। आप दोपहर की गर्मी में जब सूरज जो है वो पीक पर है, आप निकलते हैं। अब आप जो है वो धूप की वजह से आपकी आंखें जो है वो दुखने लगती हैं, हर चीज चमकती हुई आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि आप अपनी जेब से अपना चश्मा निकालते हैं, और वो ग्रीन कलर का चश्मा जो है, जो ग्रीन है, उसके ग्लासेस हैं, वो आप अपने नाक पे टिका लेते हैं। अब क्या होता है कि अचानक सब कुछ आपको ग्रीन ग्रीन नजर आना शुरू हो जाता है। यू गेटिंग मी गाइस? नाउ विदिन a split of a second, everything becomes green. Before putting those glasses on, everything was white and bright. But as you put on your glasses, green glasses, everything goes green. अब आप बताएं, क्या वो चीजें ग्रीन हो गई हैं? नहीं, वो चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। Then what happened? हुआ यह है कि आपने ग्रीन ग्लासेस लगा लिए हैं, आप उन ग्लासेस के थ्रू देख रहे हैं, तो इस वजह से आपको हर चीज ग्रीन नजर आती है। और ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारी जो अपनी सोच होती है, हमारा जो अपना नुक्ता नजर होता है, जब हम उसको जहन में रख के किसी और की बात सुनते हैं तो हम उसकी बात को नहीं समझ पाते, और हमें अपना अंदर जो हमने पहले सोचा होता है, हर चीज उसी की तरह नजर आना शुरू हो जाती है। ना फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जैसे तासुब पाया जाता है। अब क्या होता है कि एक कौम जो है वो दूसरी कौम के बारे में तासुब रखती है। मुसलमान को किसी दूसरे से तासुब रखने की मुसलमान से इजाजत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जी जो फुला कौम है वो तो होती ऐसी है, जो फुला कौम है वो तो होती है ऐसी। अब आप जिस कौम से ताल्लुक नहीं रखते, आपके सामने किसी और कौम के किसी फर्द का जिक्र किया जाता है, तो आप कहते हैं यार ये लोग तो होते ही ऐसे। अब देखिए ना, वो आदमी नमाजी हो, 5 वक्त का नेक आदमी हो, बड़ा इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड हो, बट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड दैट दिस रेस, दिस कास्ट और दिस नेशन इज ऑलवेज लाइक दिस, तो अब आप भले वो जैसा भी हो, आपने तो वैसे ही सोचना है जैसा आपने तासुब का चश्मा लगाया। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है वो चाइनीज विस्पर का एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है बेटा कि 100 लोगों की एक लंबी लाइन जो है वो खड़ी हो जाती है। 100 लोग खड़े एक लाइन में। अब ऐसा होता है कि लाइन में जो सबसे पहले खड़ा है मिस्टर 1, उस मिस्टर 1 के कान में आकर कोई सरगोशी करता है, कोई बात कहता है, ऊंचा नहीं बोलता, आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी करता है। अब वो उस सरगोशी को सुनकर जो उसने समझा है उस विस्पर से, वो लाइन में खड़े दूसरे शख्स को बताता है, वो दूसरा शख्स तीसरे शख्स को बताता है सरगोशी में, तीसरा शख्स चौथे शख्स को बताता है, यहां तक कि विस्पर ही विस्पर में, सरगोशी ही सरगोशी में क्या होता है कि जो बात नंबर 1 से चली थी लाइन में, वो नंबर 100 के पास पहुंच जाती। अब वो शख्स जिसने नंबर 1 को सरगोशी की थी, वो अब जो 100वें नंबर पर खड़ा है उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अच्छा बताओ तुम्हारे कान में क्या बात पहुंची है। अब
95% ऐसा होता है, बल्कि 99% ऐसा होता है कि जो बात उसने नंबर 1 को बताई थी लाइन में, क्यू में, वो बात जो है वो डिस्टोर्ट हो गई, वो बात गुम हो गई, वो बात जो है वो बदल गई और नंबर 100 पे जाके वो बात ही नहीं रही, बल्कि वो बात कुछ और बन गई। क्योंकि हर सुनने वाले ने बात को अपने लिहाज से सुना और समझा। जब हर आदमी अपनी सोच को इस तरह से उस मैसेज में इन्वॉल्व करता है, तो आखिर होता क्या है कि जब वो बात नंबर 100 पे पहुंचती है, तो वो बात नहीं रहती जो नंबर 1 के कान में पहुंची।